Hey everyone, I'm Pragati Kataria, welcoming you all in my channel. So yeah, let's start. We are going to start today human endocrine system. So yeah, basically what do you mean by human endocrine system? हम लोगों ने पहले nervous system तो complete कर लिया था, but now we are going हमने but पढ़ा था ना कि nervous system और endocrine system दोनों ही हमें function करने में help करता है. तो हमने nervous system complete कर लिया. So now we are going to start human endocrine system. So basically, what do you mean by endocrine system? Basically, hormones are chemical messengers, right? Human endocrine system are basically hormones, right? So hormones are, chemical messengers that are secreted directly into the blood, okay, which carries them to organ and tissues of the body to exert their function. Okay, so basically I have used one line here that they are secreted directly into the blood, but it's not मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है. It's not important that every hormone is secreted into the blood or directly secreted into the blood. Some hormones get in the duct also. Okay, you can take the example of salivary gland. Okay, in reproduction, you you know you will get to know that in the hormone will get into a duct, right? So yeah, now यहाँ पे देखो, अब हॉर्मोन्स होते हैं भाई दो टाइप के, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन. ठीक है, ग्लैंड्स जिनको हम बोलते हैं. ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, तो अब देखो ये होता क्या है बेसिकली इन एक्सोक्राइन. देखो, सी, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हाउ विल यू कैसे वो करोगे, याद रखोगे? एक्सो, एग्जिट. ठीक है, मतलब कुछ ऐसे इंग्लिश के फ्रेजेस होते हैं यार, अगर आप उनको याद कर लो ना तो रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो लाइक एक्सो मीन्स एग्जिट, नाम ही वो मैच कर रहा है. ठीक है कि एग्जिट है. एंडो, इन, मतलब इन में दे रहा है, अपने अंदर ले रहा है. ठीक है, तो कुछ ऐसे फ्रेजेस है, उसको याद ही कर लो यार डायरेक्टली. चलो अब आगे बढ़ते हैं. Exocrine glands, basically in exocrine glands basically they secrete their products into duct, as I told you earlier. They and in exocrine glands they secrete their products into ducts, and they carry these products to other organ or outside the body. Basically ये वही वाला एग्जाम्पल हो गया सेलेवरी ग्लैंड वाला कि ये लोग क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को या फिर अपने केमिकल्स को जो है डक्ट में डालते हैं, लाइक इन आ सलाइवा. वो क्या करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है एंड देन वो एक हमारे सेलेवरी ग्लैंड में डालता है. सेलेवरी ग्लैंड हमारा एक डक्ट है, राइट? उसमें डालता है. देन जब हम खाना खाते हैं तो सलाइवा हेल्प अस. या, so now let's see endocrine glands. Basically guys, endocrine glands secretes their products directly into the bloodstream. ये directly bloodstream में डालते हैं. ठीक है, in this हाँ, नहीं शायद नहीं. Yeah, in this you can take an example of I think formation of sperm, right? Is example of endocrine gland. Yeah, and hormones are chemical signals that promote communication between cell, body parts, and even individuals. Okay, yeah. So basically, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में एक और चीज आप सुन लो, दैट a structure, from structure I mean a group of cell or a tissue. Okay, so a structure makes hormones in the body. Okay,
is called endocrine gland. Hope you understand what is endocrine gland. ठीक है, मतलब endocrine gland से यही समझ जाओ ये डक्ट में छोड़ता है अपनी यू नो डक्ट में या डक्ट और ब्लड स्ट्रीम में. अब देखो कुछ ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, 6 हैं, उनको हम लोग पढ़ लेंगे. कौन कौन से हैं याद कर लेना. पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, thymus, adrenal gland, pancreas, ovaries, which is present in females, and testes, which is present in males. ठीक है, अब आ जाओ इधर. कुछ ग्लैंड्स हैं हाइपोथैलेमस जैसे. ठीक है, ये भी एक ग्लैंड है. लेट्स टॉक अबाउट इट. बेसिकली हाइपोथैलेमस अगर आप समझना चाहते हो तो एक बॉडी को एक स्कूल की तरह समझो. ठीक है, like your body is a school and hypothalamus is a principal of that school. Okay, so hypothalamus is a principal. So basically hypothalamus is present in brain. Here you can see where it is present. Okay, and it produce releasing hormones and inhibitory hormones. Basically ये order देता है हर hormones, सारे hormones को release करने का काम इसी का है. ठीक है. So basically what's its function? It regulates the secretion of hormones from pituitary gland. Pituitary gland is very important in our body. अगर pituitary gland को कुछ हो गया तो सारे बॉडी मतलब फंक्शन ठीक से नहीं कर पाएगी. तो मतलब बेसिकली हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है, ऑर्डर देता है कि भाई ये हॉर्मोन्स इस अमाउंट में, इतना अमाउंट में सिक्रीट करो. ठीक है. So basically you can say that pituitary gland is the vice principal and hypothalamus is the principal. Okay, क्योंकि principal है तो vice principal आपको order देता है ना. Yeah. So and it collects information from different parts of the brains. Okay, hypothalamus collects information from different parts of the brains and passes it on the pituitary gland by its own secretion. Understood? Yes. Now come to the pituitary gland. What is pituitary gland? Where it is located? It is also located in the brain, but below. Okay. Like ये तो इधर है ना, पर नीचे की साइड ही आप लोग इधर को मतलब देखना तो ये है pituitary gland है. ठीक है. So basically, it is located just below the brain. Okay, and it is you can say that it is a master gland as it controls secretion of all other endocrine glands, as I told you earlier. It is very important. Yeah, very very important. Yeah. So it regulates growth and development also. मतलब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को ही पता है कि कितना इंसान को ग्रो करना है, हमारी हाइट पिट्यूटरी ग्लैंड पे डिपेंड है. मतलब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपका बहुत कम हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स हम बोलते हैं, अगर ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ही कम अमाउंट में सिक्रीट कर रहा है तो आप छोटे रह जाओगे. ठीक है. और अगर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट कर रहा है तो आप कुछ ज़्यादा ही लंबे हो जाओगे. ओके, सो इट्स बेटर अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन नॉर्मली सिक्रीट करे ताकि हर इंसान की जो हाइट है वो नॉर्मल हो. ठीक है. हाँ. So, as a person having deficiency of growth hormones, कुछ लोगों को मतलब डेफिशिएंसी होती है ग्रोथ हार्मोन्स की. मतलब जो डेफिशिएंसी होती है ग्रोथ हार्मोन्स की, इन दिस आई मीन टू से दैट पिट्यूटरी ग्लैंड जो है थोड़ा कम अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है फ्रॉम द चाइल्डहुड. Okay, so they remains very short and became draft. Okay, yeah. So next, thyroid gland.
थायराइड ग्लैंड क्या होता है बेसिकली? इट इज, ये देखो भाई, ये तो जैसा ग्लैंड का नाम है वैसा ही हार्मोन सिक्रीट करता है, तो याद करने की तो कोई बात ही नहीं है, रट्टा भी नहीं लगाना, याद ही, याद हो जाएगा यार सुनते ही, रट्टा तो लगाने की सोचना भी मत इसमें। हाँ, so basically in thyroid gland it makes hormones called thyroxine, ठीक है, याद हो जाएगा thyroxine। And basically it contains iodine। आयोडीन आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, इन सॉल्ट, इन कॉमन सॉल्ट, द सॉल्ट विच वी यूज इन आवर होम्स, ठीक है, खाने वाला नमक, उसकी बात हो रही है। तो आयोडीन हमारे कॉमन सॉल्ट में होता है, राइट। तो जैसे टीवी में आप लोग देख सकते हो, एड्स भी आती है, आयोडीन रिच सॉल्ट, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ना थायरोक्सिन के बारे में तो यू कैन गूगल इट ऑल्सो, ठीक है। सो या आयोडीन का प्रॉब्लम होता है बॉडी में, अगर ज्यादा आयोडीन हो जाए मतलब तो भी प्रॉब्लम है, कम आयोडीन हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। तो कुछ भी होता है ना तो हमारा नेक है ना स्वलन अप हो जाता है, तो उसी को ना मतलब कुछ लोग होते हैं इसके डिफेक्ट, तो या उसी को बोलते हैं थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम आ जाते हैं। So yeah, basically, function of thyroxine hormones, you know, is to control the rate of metabolism. So, in this we can say, guys, that it is very important for our metabolism because it, you know, mm, uh, it do metabolism of fats, proteins, and carbohydrates in our body. So basically, it is very important to, maintain our amount of carbohydrate, fats, and proteins in our body. Okay, so yes. And why iodine is necessary? Iodine is necessary for making the thyroxine hormones. ठीक है, क्योंकि अगर थायरोक्सिन हार्मोन्स नहीं होगा तो भाई मेटाबॉलिज्म जो है फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का वो तो रुक जाएगा, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन होना जरूरी है, और थायरोक्सिन हार्मोन होने जरूरी है तो उसके लिए आयोडीन इज नेसेसरी। So iodine is necessary for making the thyroxine hormones. And in case of iodine deficiency, under secretion of thyroxine leads to goiter. Goiter एक disease होता है, you can google it, पूरा neck swollen up हो जाता है in that. So yeah, next is pancreas. If you don't know guys, pancreas is a gland, so याद रखो अब, pancreas is a gland which is located just below our stomach. Okay, yeah. So basically, it is located below stomach and secrete hormones called insulin. ये छोटे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि pancreas like liver bile juice secrete करता है, so pancreas insulin secrete करता है, right? Yeah. Basically, what is its function? Its function is lower the blood sugar level और blood glucose level also. अब देखो भाई, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सोचने दो। हाँ, आप लोगों ने सपोज, आप लोगों ने कुछ नहीं खाया, इट्स वेरी बिजी डे एंड कुछ खाया नहीं है सुबह से, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, कुछ नहीं खाया, बॉडी को लग रहा है भाई शुगर लेवल जो है ना वो हो रहा है लो, ठीक है। अब भाई बॉडी ने बोला कि भाई एक काम करते हैं, पैनक्रियास को बोलते हैं इंसुलिन जो हार्मोन तुम सिक्रीट कर रहे हो उसका जो है ना लेवल थोड़ा लो कर दो, ताकि शुगर का प्रॉब्लम ना हो जाए, शुगर कम ना हो जाए बॉडी में, ठीक है। तो मतलब इंसुलिन हमारे अगर, हाँ, शुगर कम हो गया हमारे बॉडी में, ब्लड में, तो क्या होगा, वीकनेस, पैरालाइज भी हो सकता है इंसान, ठीक है, और कोमा में भी जा सकते हैं। सो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग शुगर भी सही अमाउंट में खाएं, ठीक है, नमक भी सही अमाउंट में खाएं, सब सही अमाउंट में खाना भैया। हाँ, तो बेसिकली deficiency of insulin ना, so is cause diabetes, ठीक है,
डायबिटिक पेशेंट को आप लोगों ने वैसे भी सुना होगा कि इंसुलिन का प्रॉब्लम है, राइट? सो नेक्स्ट goes to the thymus gland. Thymus gland देख लो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, between a chest and inner, between the chest and the neck and between the two lungs. ठीक है, so basically it lies in the upper part of the neck and upper part of the chest. Okay, yeah, and thymus gland secretes thymus hormones, which plays a role in the development of the immune system of the body. ठीक है, अब ना एक बात बताऊंगी, वो ध्यान से सुनना, that gland shrinks after puberty. ठीक है, अब भाई आप लोग यही सोच रहे होगे ना कि मतलब भाई कैसे, how it shrinks after puberty and why it shrinks after puberty. तो देखो बच्चा, ध्यान से सुनो, एक मतलब क्या बोला था मैंने यार, हाँ, thymus gland secretes thymus hormones, ठीक है, for what its role, उसका रोल क्या है, its role that the development of the immune system of the body. ओके, इम्यून सिस्टम का है काम, चलो ठीक है, इम्यून सिस्टम का काम है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो, सबसे ज्यादा इम्यूनिटी किसको चाहिए होती है इन द थ्री स्टेजेस ऑफ ह्यूमंस? फर्स्ट स्टेज इज चिल्ड्रंस और चाइल्ड, सेकंड स्टेज इज टीनेजर वाला, young age, young youth, and the last one is old ones. सबसे ज्यादा, कुछ लोग बोलेंगे ओल्ड ones, कुछ लोग बोलेंगे बच्चे, ठीक है, बट सबसे ज्यादा जरूरत होती है भैया बच्चों को, ठीक है। तो सबसे इम्यूनिटी बिल्ट होना तो भाई बच्चों में ही शुरू हो जाती है। तो और फिर धीरे 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 वो जो पूरी इम्यूनिटी बन जाती है, तो ऑफ कोर्स वो जो हार्मोन है, वो जो ग्लैंड है, वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस ग्लैंड श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी हमारी एज पता है, टीनेजर एज होती है हमारी प्यूबर्टी की, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट लेट्स गो टू द एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड को हम लोग ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी बोलते हैं। एड्रेनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं? ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। पेपर में अगर ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी लिख के आ गया, तो ये मत सोचना भाई अलग ग्लैंड है, नहीं पढ़ा छोड़ के आ जाओ, छोड़ना नहीं, एड्रेनल ग्लैंड की बात हो रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी दैट एड्रेनल ग्लैंड्स, it is a pair of adrenal present, one on top of each kidney। दोनों किडनीज के ऊपर जो है ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है। दो ग्लैंड्स होते हैं, मतलब एक पेयर है इनका, अ पेयर ऑफ शूज बोलते हैं ना, उसमें दो जूते होते हैं, या सो दैट, या, एंड इट सिक्रीट्स द हार्मोन नेम एड्रेनालाइन। ठीक है, इसको भी याद करने की ज्यादा ये सॉरी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट सिक्रीट्स द हार्मोन एड्रेनालाइन। एंड व्हाट इट्स फंक्शन, बेसिकली its function is adrenaline hormone's function is to regulate heart rate, breathing rate, blood pressure, and carbohydrate metabolism. Okay, so अब ये आप पे क्वेश्चन पुट अप होता है कि भाई इमरजेंसी ग्लैंड क्यों बोलते हैं, जब ये हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है यहाँ। तो हम देखो, एक एग्जांपल ले लो। हम भाई जा रहे हो, रात के टाइम जा रहे हो, कोई डेंजर सा डॉग मिल गया, आपको डॉग से डर लगता है, डॉग घूर रहा है, आप भागोगे, ठीक है। अब भागने के लिए आपको ब्रीथिंग रेट भी ज्यादा चाहिए, हार्ट रेट भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। अब इस चीज के लिए, और हाँ, ब्लड प्रेशर भी ठीक चाहिए होगा बिल्कुल। तो इस चीज के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। तो एक इमरजेंसी है ना, आपको वहां से भागना पड़ रहा है, तो उसको रेडी रखता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। एंड इट ट्रिगर्स द बॉडी फाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स में ये ट्रिगर करता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द गोनाड्स। Okay, so basically gonads are the gametes. Okay,
it is a gametes, and it is a producing organs also. Okay. And it is in this test there are two glands. I have told you that testes and ovaries. So testes in males present in males, and ovaries are present in females. Okay. And testes makes male sex hormones called testosterone, and ovaries makes two फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स. ओके. टेस्टिस तो एक ही बनाता है, बट इन ovaries which is present in females it makes two sex hormones called estrogen and pyrogrost. ठीक है. So from this we end this chapter finally. And if you like the video and the explanation, so please to like, share, comment and subscribe the channel. Thank you.